राइट डाउन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम, आपका टॉपिक। आप बोल रहे थे ना कि सर डिस्क्रीट कब पढ़ेंगे, डिस्क्रीट कब पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट नहीं, अभी नहीं। राइट डाउन फर्स्ट यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इट इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ एन, ठीक है, डेल ऑफ एन। ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ दिस। Del of n is 1 at n is equal to 0 and 0 when n is not equal to 0. Tell me what is del of t at t is equal to 0 and what is del of t at t is equal to 0, what is the value? Infinite. वन कैसे हो सकता है? वो एरिया वन होता है, एरिया इज वन एंड वो इट इज इनफाइनाइट। डेल ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट। ओके, डन। राइट डाउन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टेल मी इट इज एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल और नाइदर एनर्जी नॉर पावर। वाई? इसका तो वैल्यू वन है, एनर्जी सिग्नल। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट डेल ऑफ एन, डेल ऑफ एन इज एन एनर्जी सिग्नल। व्हाट इज डेल ऑफ टी? मैग्नीट्यूड वन नहीं हुआ है, उसका एरिया वन है। वो आप जो बार बार बोल रहे मैग्नीट्यूड, वो जो है ना, वो जो ऐसे दिखाता है वन, वो एरिया वन होता है, मैग्नीट्यूड इंफिनिटी होता है, ठीक है। डेल ऑफ टी का एरिया वन होता है, मैग्नीट्यूड इंफिनिटी होता है। तो डेल ऑफ वो क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, नाइदर एनर्जी नॉर, ठीक है। कम टू सेकंड प्रॉपर्टी, डेल ऑफ ए एन is equal to del of n, del of an is equal to del of n. Tell me what is del of at? 1 by mod a del of t, ठीक है। Come to third point, third property. X of n into del of n minus n1 is equal to x of n1 into del of n minus n1. Okay, property number 3. Come to 4. X of n convolution del of n minus n1 is equal to x of n minus n1. Write down. ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल क्या होता है? यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी से टी, ठीक है, यू ऑफ टाउ, सॉरी, डेल ऑफ टाउ डी टाउ is equal to u of tau. Anyone problem? Anyone problem? Anyone problem? लिख रहे बस उसी में जा रहे हैं. ऐसा कीजिए, रिप्लेस इंटीग्रेशन बाय समेशन. रिप्लेस कीजिए, replace small t by n and replace tau is equal to k. It will look like k is equal to minus infinity to n del of k is equal to u of n. Write down. ठीक है, u this result, remember this. ठीक है, write down second signal, unit step signal. Unit step signal. Unit step signal. It is denoted by u of n. Okay. Its waveform will look like this. So u of n, when n is less than 0, its value is 0. N greater than or equal to 0, its value is, write down. Tell me about u of t. T less than 0, its value is, t is equal to 0, its value is 1 और 1/2. कॉपी देखिए, आप लोग कॉपी रिवीजन नहीं कर रहे. एंड t ग्रेटर देन 0, इट्स वैल्यू इज, ठीक है. एनी प्रॉब्लम? कभी लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन दे देता है, उस टाइम फिर आप 1 करके आइएगा, डेल ऑफ टी का 1 करके आइएगा, तो फिर वहां पे मार्क्स लूज कीजिएगा. ठीक है, राइट डाउन. हो गया, राइट डाउन. चेक चेक पीरियोडिक, check periodic and non-periodic signal. Check periodic and non-periodic signal. Come to this one. First, x of t, u of t plus u of minus t. Tell me, it's periodic or non-periodic? Write down.
its value is 1. So DC signal is a periodic signal. Come to second one. X of n is equal to U of n plus U of minus n. Tell me, it is periodic or non-periodic? Huh? Periodic? It is non-periodic. देखें, why it is non-periodic? समझ आया? आ गया? U of n, tell me, U of n will look like this. It is U of n. U of minus n, it is look like this. Look like this. Its value is 1. Its value is 1. Add them. It is 2. It is 1. 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 So it is non. Write down. ठीक है? चल जय draw. Write down question. Draw signal. Draw signal x of n. X of n. X of n, which is U of n minus U of n minus 3. Draw it. Draw x of n, where x of n is equal to U of n minus U of n minus 3. Done? This is our U of n. ऐसे ही this is our U of n. This is our U of n minus 3. ठीक है, ये 3 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5. 3 से लेके उधर बाकी सारा 0. So the signal will look like this 0 1 2. Done? हो गया?
come to first, draw u of minus n plus 5. Draw it. Draw. Done? नहीं, माइनस साइन इज इंडिकेटेड लेफ्ट साइडेड सिग्नल। याद आ रहा है? लेफ्ट साइडेड, समझ आ रहा है? तो ये कहां से चालू हो रहा है? तो 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3, ऐसे ही चलता जाएगा। डन? ड्रॉ सेकेंड u of minus n minus 4. Draw it. ये कहां से आएगा? माइनस साइन मतलब लेफ्ट साइडेड। ऐसे आएगा। डन? राइट डाउन। थर्ड हो गया ना? ड्रॉ द वेवफॉर्म, ड्रॉ द वेवफॉर्म x of n is equal to u of n plus 1. x of n is equal to u of n plus 1, u of minus n plus 2. Draw. This dot indicated multiplication, okay? ये सिग्नल यहाँ पे कभी भी जो सिग्नल बनेगा वो डेसिमल पे नहीं बनेगा, पता है ना? 1 पे बनेगा, 1.5 पे नहीं, 2.3 पे नहीं, 4.2 पे नहीं, 4.1 पे नहीं बनेगा, ठीक है? इंटीजर पे बनेगा, तो याद रखिएगा। डन? यू डन?
कितना के आया, रेंज बता दीजिए। 1 से लेकर 2 या -1 से लेकर 2? सॉल्व और नीड टू डिस्कस, डिस्कस। u of n plus 1 will look like this. -1, 0, 1, 2, 3. Done. U of -n plus 2 will look like this. Look like this. ठीक है. Now when we multiply this and this, we get -1 पे 1, डन, 0 पे 1, 1 पे 2 पे 3 पे -2 पे, डन. Write down. different operation on signal. Different operation on signal. First, time shifting. First, time shifting. See, x of n seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 5. ये सिग्नल मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है. x of n given and the arrow is indicated at 9. What? The arrow is indicated at 9. It means 9 at n is equal to 0. Anybody problem? Now, if we will find out x of n plus 1, if we will find out x of n plus 1, then this signal will 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 5. x of n plus 1 याद रखिएगा, जब +1 मतलब we will move this side, ठीक है. अगर वही x of n minus 1 आ जाए, x of n minus 1 आ जाए, then come to this, ठीक है. अगर x of n minus 2 रहेगा तो कहां पे आएगा एरो? राइट डाउन. ठीक है, समझ आया? Write down second one. Write down second one. Decimal, second property, sorry, second operation. Decimation, DECIMATION. Decimation
राइट डाउन। सेकंड, डेसिमेशन एंड कॉम्प्रेशन इन टाइम। ओके, सी it is our x of n. Okay, if we will draw x of 2n, x of 2n, then क्या क्या रहेगा बताइए? 11 रहेगा, 11 रहेगा, 0/2 0, 1/2 ये लेफ्ट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, ऐसे देखिए, this is our n is equal to 2, this is our n is equal to 3, this is our n is equal to 4, ठीक है, n is equal to ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा, डेसिमल वाला खत्म हो जाएगा, तो x of 2n मतलब डिवाइड बाय 2, ये टाइम एक्सिस वाले को डिवाइड बाय 2 करते थे, तो 11 ये तो यही रहेगा, n इज इक्वल टू 0, प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय 2, दिस इज कैंसल, 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1, इट इज 13 रहेगा, आगे देखिए 3 रहेगा या नहीं रहेगा, 3 डिवाइड बाय 2 नहीं रहेगा, कम टू 4 डिवाइड बाय 2, इधर बताइए 10 रहेगा, क्यों रहेगा, -1 डिवाइड बाय 2, -2 डिवाइड बाय 2 रहेगा, ये समझ आया? ये बताइए 3n में मुनीम क्या क्या रहेगा, 11 तो रहेगा, 0/3 0, आगे बताइए क्या रहेगा, 12 भी नहीं रहेगा, 13 2 क्या रहेगा, 9 क्यों रहेगा, समझ आ गया? राइट डाउन। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन, समझ आ गया होगा? डन। हो गया? एक दिन आगे आ जाइए ना यहाँ पे, बैठ गए, राइट डाउन। थर्ड ऑपरेशन, इंटरपोलेशन और एक्सपेंशन इन टाइम, इंटरपोलेशन और एक्सपेंशन इन टाइम, समझ आ रहा है? इंटरपोलेशन और एक्सपेंशन मतलब वो बढ़ जाएगा, इफ x of n is equal to 4 5 8
ठीक है, एंड एरो इज गिवन हियर। एरो मतलब समझ आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू, ठीक है, इफ x ऑफ n बाय 2 वी विल ड्रॉ x ऑफ n बाय 2, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 रहेगा, ये -2 पे आ जाएगा, ये यहाँ पे तो -1 पे है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 पे, 2 को यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 पे ही रहेगा, मतलब -2 -1 पे क्या होगा 0 होगा, कुछ नहीं तो 0 होगा। कम टू दिस वन, दिस इज 1, 1 इंटू 2 2, 2 पे क्या होगा 8 होगा, 2 पे होगा, लेकिन 1 पे क्या होगा, तो हमें वहां पे इतना नहीं दिखाना है, बस ऐसे दिखा देना है, ठीक है। ड्रॉ x ऑफ n बाय 4, x ऑफ n बाय 4, ड्रॉ इट। डन, क्या क्या है, ठीक, राइट डाउन वन क्वेश्चन। x of n is equal to 1 2 3 4 5, x of n is equal to 1 2 3 4 5, find y of n, find y of n, y of n is equal to x of 2n by 3। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ x of 2n, वन टू थ्री फोर फाइव में 3 पे मार्क है, ठीक है, 1 2 3 4 5, एरो साइन इज प्रेजेंट ऑन 3, क्या ये वाला डाल लीजिए ऐसे, एक्स ऑफ एन, और 3 नहीं रहेगा, डन, कितना आया 1 0 0 3 5। सेकेंड, y of n x of -n plus 1, draw it। डन, कितना है बता दीजिए,
आप मेरे को इसमें बताइए ना, रेंज में। यही है एक्स ऑफ एन। हाँ, आप किसका बना रहे हैं? If it is x of n, then draw x of minus n plus 1. डन। एरो कहाँ पे आएगा? 4 पे। और वो पॉइंट, हाँ, 5 से 1 तक जाएगा। डन। आप एरो बना बना के क्यों कर रहे हैं? ऐसे करेंगे मतलब डायरेक्ट तो सीखे ना। ठीक है, बट एरो बना के वो मतलब। डन। राइट डाउन थर्ड वन। y of n, find out y of n is equal to x of 2n minus 1. X of 2n minus 1. Draw it. डन। कितना है? कितना? सिर्फ 2 और 4 आया, 6 है कहाँ? 2 और 4। डन। राइट डाउन फोर्थ ऑपरेशन, कॉन्वोल्यूशन। हो गया था ना? कॉन्वोल्यूशन। y of n, x1 of n convolution with x2 of n. It is written like k is equal to minus infinity to infinity x1 of k into x2 of n minus k. Write down. It is our fourth operation. Draw.
consider the signal, consider the signal, consider the signal x of n and y of n are given below. Consider the signal x of n and y of n are given below. It is our x of n. It is our y of n. ठीक है, it is 1, it is -1. The signal y the signal y 1 minus n, the signal y of 1 minus n y n दिया हुआ है, y of 1 minus n ड्रॉ करना है. एक्शन के भी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्शन पे ही है, वो भी लिख लीजिए. द सिग्नल x of 3n minus 1, 3n minus 1. इसका भी एक बार फोटो खींच के अपने ग्रुप में डाल दो. इसका फोटो खींच के यहाँ से लेके जितना प्रैक्टिस के लिए आपका जो भी ग्रुप है उसमें डाल दीजिए यहाँ तक के. ये सब प्रैक्टिस कर लेना घर में, ठीक है. मैं यहाँ क्या कराऊंगा, सारा एक में करवा दे रहा हूँ.
डन। आप लोग सारे आंसर मैच कर लेना आपस में। आगे आंसर इसका मतलब बता दीजिए, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम ही बना दीजिए, या फिर पॉइंट बता दीजिए कहां पे क्या है। y1 माइनस एन, एक मिनट कर ले रहा हूं। हाँ बता दीजिए, फिर 0, डन। क्या? हाँ हाँ हाँ, एरो एरो, ठीक। 3n माइनस 1 था, बनाए नहीं? क्या है बताइए? नहीं मतलब क्या ड्रॉ करना, वाई ऑफ ये ना, ठीक है। वाई ऑफ एन बता दीजिए क्या है। वाई ऑफ एन बता दीजिए क्या है। -1 -1 -1 -1, ये 4, फिर 0, फिर क्या है 1 1 1 1, डन। यही है। पहले ड्रॉ कीजिए वाई ऑफ एन प्लस 1। अभी एरो कहां पे? वाई ऑफ एन में एरो कहां पे? 0 पे। तो वाई ऑफ एन प्लस 1 कैसा हो जाएगा? -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1 होगा। एरो कहां आ जाएगा? यहां पे। अब हमें क्या करना है? वाई ऑफ -n प्लस 1, यही करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिग्नल रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -1, दिस विल कम हियर। समझ आया? अब इसको फिर इसमें लगा दीजिएगा, ये सिग्नल ड्रॉ कर दीजिए। 3, एक मिनट, 1 और 2, हाँ एरो 1 में भी ऑप्शन रॉन्ग भी हो सकता है, अगर आप सही हैं तो फिर सही होगा। आप लोग आपस में मैच कर लीजिए। डन। एनी प्रॉब्लम? डन। ये सारे क्वेश्चन जो पीडीएफ पे दिया, मतलब ये जो फोटो खींचे वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन। हमेशा आएगा गेट में ये क्वेश्चन। x1 ऑफ एन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मतलब अगर आएगा तो यही आएगा, इसी टाइप के आएंगे, मतलब हटाओ। वन ऑफ एन
इज 2 माइनस 1 4, ठीक है। x2 ऑफ n गिवन -2 0 -1 5, डन। फाइंड y ऑफ n, फाइंड y ऑफ n विच इज x1 n कॉन्वोल्यूशन विथ x2 ऑफ n। देखिए इसको कैसे करेंगे, एक मैं करवाता हूं फिर आप कीजिएगा। फाइंड y of n is equal to x1 n convolution with x2 of n. The arrow is given at -1 and at 0, ठीक है। ये दिया हुआ रहेगा, लिखने का जरूरत नहीं है। क्या निकालना है हमें, y of n x1 n convolution with x2 of n, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसको टेबुलर मेथड करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। टेबुलर मेथड, इट इज आवर x1 ऑफ n, इट इज आवर x2 ऑफ n। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x2 n ऊपर भी जा सकता है, x1 n नीचे भी आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज आवर x1 ऑफ n, 2 -1 4, ठीक है। व्हाट इज आवर x2 ऑफ n, टेल मी, -2 0 -1, ठीक है। -2 इंटू 2 -2 इंटू -1 -2 इंटू 4, ठीक है। 0 इंटू 2 0 इंटू -1, ठीक है। माइनस -1 इंटू 2 -1 इंटू -1 -1 इंटू 4, एनी प्रॉब्लम, एनीवन। 5 इंटू 2 5 इंटू -1 5 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारा y ऑफ n आ गया, इसका -4 है वैल्यू। अगर एक एरो कट करे -4, ये दोनों का समेशन बताइए, 2 और 0 का समेशन। नेक्स्ट इसका समेशन बताइए, क्या? हाँ, -8 -2 -10 ना, 5 कहां दिख रहा है? जो कट रहा है, जो कट रहा है बस अंदर वाला, -4 0 से 2, ठीक है। ये बताइए 10 और ये बताइए, और नेक्स्ट समझ आया? अब वाई एन तो हम लोग दे दिए, इसका एरो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? इसका एरो कहां पे है? 1 2 पे, ऐसे काउंट कीजिएगा, 1 2 पे एरो इज इन 2 पोजीशन। इसका एरो +2 2 + 2 एक माइनस कीजिएगा, कितना है 3, मतलब हमारा एरो 1 2 3 पे है। समझ आया? ड्रॉ कीजिए। ये कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। x2 n हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं, x1 n नीचे भी ले सकते हैं, चाहे तो करके देख सकते हैं, सेम ही आएगा।
ठीक है, एक बार कर लीजिए, अगर बैठे हैं वैसे x2n वाला करके देख लीजिए, ये ऊपर नीचे करके देख लीजिए। ऊपर वाला क्यों कवर कर रहे हैं? मैं किया हूं, अलग पेन से कर लीजिए। फिर ऊपर वाला क्यों नहीं किया? ये तो होगा ना -8। एक ही चीज आ रहा है। डन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। x1 ऑफ n, मिटा दे इसको। x1 of n is equal to 1 5 1 5 1 5 -2 4, it is our x1 of n. x2 of n -1 0 3 12, arrow is at -2 and at 12. Find y of n is equal to x1 of n convolution with x2 of n. Arrow, done. Write down one note. Note हो गया, no need to discuss.
signal extension length, हाँ, सिग्नल एक्सटेंशन लेंथ, वन सिग्नल x1 ऑफ n, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन दिया हुआ है n1 से n2, ठीक है, n1 से n2, इसका लेंथ दिया हुआ है l1, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है l1, अनदर सिग्नल x2 ऑफ n जो दिया हुआ है हमारा n3 n4 एंड इसका लेंथ जो है वो l2, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए हमें पूछेगा y ऑफ n का रेंज क्या होगा, सिग्नल का एक्सपेंशन रेंज क्या होगा, तो दिस विल बिकम n1 प्लस n3 समेशन ऑफ दिस वन, ठीक है, n n2 प्लस n4 समेशन ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज l1 प्लस l2 माइनस 1, राइट डाउन। From this one question asked in grade, write down that question. Write down. Let x of n comma -5 like this, 3 and h of n comma 2 6 B2 finite duration signal, B2 finite duration signal, the range of their convolution is, the range of their convolution is, option required, ये पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है, कितना, ठीक है, राइट क्वेश्चन, consider two signal given below, हो गया ये, consider two signal given below, x of n one at n is equal to -2, 0, 1, 2 at n is equal to -1,
एंड 0 elsewhere कहीं भी। h of n is equal to del of n minus delta n minus 1 plus delta n minus 4. Okay, the convolution y of n is equal to x of n convolution with h of n, x of n convolution with h of n. Done? ऐसे क्यों मीनिंग इसको, x ऑफ n है, ठीक है। -2 पे क्या है, -1 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, यही 4 है, बाकी सब पे तो 0 है। एरो कहां पे लग जाएगा, यहीं पे लगेगा। h ऑफ n क्या है, 0 पे 1 है, 1 पे -1 है, और 4 पे मतलब 2 और 3 पे 0 0 है, और 4 पे 1। इसका कॉन्वोल्यूशन निकाल दो। डेल्टा के फॉर्म में बोलिएगा, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन इस फॉर्म में बोलिएगा, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था मतलब। डेल्टा n प्लस 2, हाँ, +2 डेल्टा n माइनस 3, +2 डेल्टा n माइनस 3, प्लस डेल्टा n माइनस 4, प्लस 2 सिर्फ एक जगह पे होगा वो, ठीक है।
Done. Write down one question. Two causal finite length sequence are given below. इसको ऑप्शन से तुरंत एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है। टू causal finite length sequence are given below. Y of n 6 11 minus 13 16 1 9 2 8, ठीक है। H of n 2 5 minus 1 comma 4. Done. If ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिएगा, इसको करने की जरूरत नहीं। इफ y of n is equal to h of n convolution with x of n, then sequence x of n is, write down first option. हाँ हाँ, कम टू ऑप्शन बी। ऑप्शन से तुरंत एलिमिनेट करके बता दीजिए। बी कुछ भी ऑप्शन फोर देते हैं, बी होगा। अब बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको क्या लिखें? बी होगा। ऑप्शन से एलिमिनेट, इसीलिए तो मैं ऑप्शन लिखा। मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, एक दो नंबर सीक्वेंस वाले आ गए बस। बी 3 into 2 6 8, इसीलिए तो मैं ऑप्शन लिखा, एलिमिनेट कर पाइए आप लोग, ठीक है। राइट डाउन y ऑफ n, हो गया ना ये? y ऑफ n is equal to h of n, y of n is equal to h of n convolution with b of n, ठीक है। where h of n is equal to 1 by 2 to the power n u of n, ठीक। g of n is a causal signal, g of n is a causal signal, y0 is equal to 1, y0 का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। y1 वैल्यू इज 1 by 2, y1 वैल्यू इज 1 by 2। फाइंड g of n at n is equal to 1, g of n at n
इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए। आ गया? ये गेट में पूछा है। देखे, देखिए जी ऑफ एन क्या बोला है? कॉजल, मतलब 0 एट एन लेस देन 0। ठीक है, एच ऑफ एन ठीक है, ठीक है। एच ऑफ एन क्या है? 1/2 टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन। तो ये क्या आएगा? 0 पे 1, 1 पे 1/2 आएगा, 2 पे 1/1, 1/2, 1/4। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जी ऑफ एन कहाँ चाहिए? 1 पे। तो हमें ये बताइए y ऑफ 0 कितना है? जी ऑफ 0 y ऑफ 0 कितना है? 1। मतलब ये कटा तो 1 हुआ, y ऑफ 0 1 हुआ। अब बताइए हमें ये कि y ऑफ n, ठीक है, y ऑफ 1 कितना है? मतलब g 1 पे कितना है? 1/, तो ये 0, अगर यहां 0 लेते हैं तो ये 0, ये 0, जी ऑफ n सारा 0। ठीक है, किसको 0 क्यों लिया? एक मिनट में देख रहा हूं। जी ऑफ n 1 1/2 1/2। नहीं, 1 लेंगे इसको। देखिए, अगर जी ऑफ 0 को 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/4। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, हमें क्या है? y ऑफ 0 1 दिया हुआ है, मतलब पहला का समेशन 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, y ऑफ 1 का वैल्यू कितना है? 1/2। मतलब यहां पे क्या लेना होगा? 0, तभी तो 1/2 होगा। और ये 0 कैसे आएगा जब यहां पे 0 लेंगे? तो जी 0 का वैल्यू 1, जी 1 का वैल्यू 0। समझ आया? ऐसे ही तो सारा निकाल लेंगे अगर और कुछ पूछेगा तो।
ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, जब भी आप पढ़ेंगे या जब भी डिस्क्रीट टाइम तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये अभी नया क्वेश्चन है, शायद 21 या 20 का क्वेश्चन है, तो फिर आपको हो सकता है कभी और कुछ पूछ दे। मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। राइट डाउन नेक्स्ट एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी एंड पावर सिग्नल हो गया ये। एनर्जी एंड पावर सिग्नल। फर्स्ट एनर्जी सिग्नल। फर्स्ट एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल में ई लिखिए फाइनाइट होता है, एनर्जी फाइनाइट एंड पावर 0, ठीक है। एंड इट्स फॉर्मूला इज ई एट n is equal to minus infinity से infinity x of n का होल, ठीक है। दिस इज एनर्जी। कैलकुलेट एनर्जी for the following signal x of n is equal to 1 plus j, 1 minus j, 2j minus 3, 4. Calculate मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर ऐसे हाँ 30 राइट डाउन सेकंड में हाँ x of n is equal to 1/3 to the un। इसका एनर्जी बता दीजिए। आज 0 से इन्फिनिटी तक ऐड कौन करेगा? 1/9 to the power n, इसको ऐड कर दीजिए। अभी पता है गेट के स्कोर कार्ड से भी कितना ज्यादा ऑप्शन खुल रहा है, वहां पे हमारे यहाँ पे लोगों को दुबई भेज रहे हैं। और सैलरी पूछो कितनी? 2 लाख।
1/9/8। गलती कर रहे होंगे कहीं पे। हाँ 1/9 के पावर n, तो n कहाँ से 0 से शुरू होगा, तो 1 + 1/9 + 1/9 का स्क्वायर, तो a/1 - r, तो हाँ a1 होगा। हाँ 9/8। राइट ऑन पावर सिग्नल। पावर सिग्नल लिख लीजिए। पावर फाइनाइट, एनर्जी इनफाइनाइट। तुम्हें ऑप्शन मिला तो जाएगा दुबई? हाँ क्यों? बस वही सीन। 2 महीने की छुट्टी है वहां पे, 10 महीना काम दुबई में। अगर गेट के स्कोर कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं वो वैलिड है, लेकिन जहाँ पे मैं अप्लाई किया हूँ, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, वहां से लोग भेज रहे हैं दुबई लोगों को। नहीं नहीं, मेरे को यहीं पे चाहिए। मैं यहीं पे कोई यही निकाल के, या वो प्रोफेसर वाला हो जाए, बस उसी में खुश। मेरा एक फ्रेंड गया है, वो मतलब 2 महीना पहले गया। उसकी सैलरी जब वो ज्वाइन किया था 1,56,000 पे ज्वाइन किया था, अभी 2 लाख हो गया। और उसका रैंक था कितना गेट में, शायद 1400 ऐसे कुछ आसपास, 1400 1400 के आसपास। अब कल मेरे को बोल रहे थे वहां पे कि तुम जाओगे तो बोलो, तो हम घर में जब बात की तो घर वाले बोले नहीं नहीं रहने दो। अभी सामने एग्जाम है, जेई यही कुछ बन जाओ, बस हो गया। मोर देन एनफ। नहीं नहीं, मेरे को वैसे भी जाना नहीं। ऊपर से पता है वहां रहना खाना सब, मतलब तेरे को कोई पैसा नहीं रहेगा, जो 2 लाख में तुम्हारे हैंड में आएगा, बस तुम्हारा ना रहने का पैसा। वो तो फिर मतलब अभी तुम्हारा फैमिली, पहले फैमिली तो आए। हाँ उन लोग को ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तो इन लोग गए, मतलब इन लोग को एक फ्लैट मिला है, और मतलब क्या डिसेंट फ्लैट यार, मतलब फोटो वगैरह है मेरे फोन में, मतलब देखो बहुत। ऊपर से गेट वालों को तो मतलब इज्जत से बोलते कि तुम रहो, तुम्हें जाना नहीं है कहीं। और जो मतलब ऐसे जो बीटेक करके या फिर ऐसे जो किसी के थ्रू गया है, उन्हें बोल रहे कि ठीक है तुम कहीं और काम ढूंढना चाह रहे हो तो ढूंढ लो, और उन लोग को तो बोले तुम लोग करो काम। मेरा दोस्त हमें बोल रहा था कि अरे क्या सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा है आज। सुकून है ना, सुकून है ना। वो पता नहीं प्रेशर है कि नहीं। तो अच्छा है ना, फैमिली के पास टाइम है। एक बार जाओगे 10 महीने के बाद आना होगा, दिक्कत ये है। एक बार जाओगे ना 10 महीने के बाद आना होगा, जब छुट्टी होगी, और वो छुट्टी की सैलरी भी देंगे, वो जो 2 महीना घर में बैठोगे ना उसकी सैलरी भी देंगे। ठीक है कोई नहीं, अगला साल गेट स्कोर कार्ड अच्छे लाओ, अप्लाई कर देना। स्कोर कार्ड ला के मुझे देना, मैं अप्लाई कर दूंगा वहां पे, ठीक है अगर जाना हो तो। क्या? नहीं नहीं, उधर मतलब बोले ना कि झारखंड बिहार के लोग जाएंगे ही नहीं, उन लोग बोलेंगे रहने तो, मेरा यहाँ का 70,000 काफी है।
राइट डाउन 4 पीरियोडिक सिग्नल, 4 पीरियोडिक। वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, अगर कुछ नहीं हुआ लाइफ में तो फिर ऑप्शन जा सकता है, लेकिन अभी क्यों जाएगा? सबसे वर्स्ट सिचुएशन है। और वहां पे तो सब चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मतलब हमें समझ नहीं आता क्यों, बस कैसे बनते हैं ना, एक तो कैसे बनेंगे और कुछ टाइम के बाद सेटल हो सकते हैं। पता नहीं यार, हम लोग की तरफ तो नहीं जाता है कोई, मतलब हम लोग वहाँ पे 3 है, वहाँ पे बिहार के और एक झारखंड के, वो वो चारों तो जाना ही नहीं है। सर बोल रहे कि अरे मतलब 6 महीने के बाद वो सैलरी हो जाएगी अप्रोक्स 2,70,000 के आसपास हो जाएगी, चले जाओ 10 महीना काम करना है, मतलब हम लोग का जो लीड है वो 10 महीना काम नहीं। नहीं जाना है, मेरा अक्टूबर में एग्जाम है, ऐसे ही बोलते हैं अक्टूबर में एग्जाम है। इवन मेरे तो दोस्त है वो बोलता तुम खाली सरकारी नौकरी के पीछे रहो। हाँ यार, it is for non periodic signal, for non, it is for periodic, it is for non periodic। मैं जब कल ऑफिस से आया तो घर में बोला कि ऐसा ऐसा है, दुबई जाना है, तो अभी नहीं लेकिन 15-20 दिन 25 दिन में जाना है। तो घर वाले बोलते हैं कि काहे, वहां क्यों जाएगा, इधर काम नहीं है, इधर एग्जाम नहीं है। और मैं वहां बोल के आया था कि हाँ हाँ मैं जाऊंगा, मतलब ऑफिस में। कैलकुलेट, कैलकुलेट सिग्नल पावर, बड़ा गंदा सा वेव फॉर्म। जीरो 1 2 3 4 5 7 पे एक ही जा रहा है, ठीक है, मतलब पीरियोडिक सिग्नल है, बस इतना मान लो, ठीक है, क्या है ठीक है, 7 पे एक ही रिपीट कर रहा है, ठीक है, इधर भी वही चीज हो रहा है, ठीक है, इट्स वैल्यू इज 1 and its value is 2, tell me the power of the signal। n7 हो जाएगा जब यहाँ से रिपीट कर रहा है। कितना
14/7, 14/7 एक्स ऑफ एन का स्क्वायर नहीं लिखा था क्या मैं? तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या बोले? आंसर 2, ठीक है। राइट डाउन सेकंड में, ठीक है। इस क्वेश्चन पर इसके बाद एक और करेंगे, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए नॉट यू ऑफ एन। टेल मी इट इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? ठीक, नॉन पीरियोडिक। कैलकुलेट कीजिए इसका पावर। आवाज नहीं जा रहा होगा इसका, एक बार बैटरी के लिए बोल दीजिए। क्लास में प्रॉब्लम कम करवाइए। नॉन पीरियोडिक है ये वाला सिग्नल। एन कुछ नहीं लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी पे सॉल्व करेंगे लिमिट लगा के। नॉन पीरियोडिक वाला फॉर्मूला लगाइए, बोल दिए। लीजिए खोलिए, लीजिए मैं कर देता, लीजिए मैं कर देता। कितना है? पावर का लिखे नहीं थे क्या आपने? एन इज इक्वल टू माइनस एन से एन, क्या पीरियोडिक का? 1/n समेशन n इज इक्वल टू n समेशन n इज इक्वल टू n मॉड ऑफ एक्शन का होल स्क्वायर। नहीं, तभी तो हम लोग वहां 7 तक ही जोड़े ना। अगर इन्फिनिटी होता तो फिर तो वो सब भी जोड़ते, 7 8 9 10। ए नॉट स्क्वायर बाय 2 बता रहा, सॉल्व करें। टेल मी फॉर्मूला, लिमिट इंफिनिटी 1 बाय समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ए नॉट का स्क्वायर
इन्फिनिटी का n तक ना, ठीक है ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n + 1, ठीक है। ए नॉट स्क्वायर बाहर आएगा। कोई चीज का समेशन अगर 0 से n तक है और अंदर में 1 है तो वो n + 1 बन जाता है। समझ आया? नहीं समझ आया? 0 से 4 तक मान लीजिए अंदर 1 है तो 0 पे कितना वैल्यू है? 1, 1 पे कितना वैल्यू है? 2 पे, 3 पे, 4 पे 1, देन दिस विल बिकम 5। इसको हम लोग 4 + 1 नहीं लिख सकते? समझ आया? ठीक है, इस पर लिमिट लगा दीजिए अपना। ए नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, लिमिट ए नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1 डिवाइड बाय 2n + 1। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में है तो क्या करेंगे? यूज एल हॉस्पिटल। इससे क्या आ जाएगा? ए नॉट स्क्वायर बाय 2। समझ आया? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको घर में कर लीजिएगा, ठीक है। लिमिट पढ़े मैथ में आप लोग? पढ़ नहीं? ठीक, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। x ऑफ n, डन। इसको रब कर देना। x ऑफ n इज इक्वल टू -4, 2, 1, 1 + 2j -2j। कैलकुलेट conjugate symmetric part of x of n। क्या होता है फॉर्मूला कॉन्जुगेट सिमेट्रिक का? x of n डिवाइड बाय, ये चीज कैलकुलेट करना, ठीक है। घर में ट्राई कीजिएगा। डन, ठीक है, फिर ब्रेक लीजिएगा।